Hey you guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Vinci Yadav. I am a class 12th grader, also a CLAT aspirant. Today I am going to take you through from another day in my life and will show you what I did throughout the day. I was eating some salad and fruits while studying political science as my board examinations are approaching. After that, I prepared my to-do list carefully, noting down all the tasks I needed to complete. Then I decided to begin with book 1 of political science. After watching a one short lecture, I estimated that even if I watched each video at 1.5x, you guys, completing one entire book would still take me nearly 5 hours. In fact, I had initially estimated that it would take me 5 hours, but ended up taking 5.5 hours. Yes, you heard that absolutely right. I spent 5.5 hours continuously completing one entire book. And yeah, what I realized, pre-board vivas and practicals will continue to come and go. And I can't afford to sit idle using them as an excuse. So इसीलिए I filled out a to-do list style planner, plan to keep myself on track. I would say you too should keep track of your CLAT plans and stay accountable to them. After everything, no matter what happens, you guys, I am a human too. I was feeling extremely bored. Then my younger brother suddenly came up with the idea. He told, since the Christmas vibes were already in the air, he suggested me that we can go and buy a few things. So I went along with him to Mr. DIY. Here's a small haul for you guys. To tell you guys, we didn't buy anything particularly special, but whatever I picked, whatever I bought, it genuinely satisfied me. Like I bought my childhood memories back. It made my inner child truly happy, यार. इससे ज़्यादा क्या चाहिए? And I ended up buying quite a few little cute things, cute items. तो हाँ यार, ये भी reminder ही है तुम लोगों के लिए. Don't keep हमेशा chasing your achievements endlessly. थोड़ा सा make sure to keep yourself happy as well, यार. So it's already 12:30 a.m. right now, and I was studying political science. And I suddenly saw someone's comment asking me what lessons did I learn from CLAT 2026 and what piece of advice I would like to give you guys. So to tell you guys, uh, बेशक ज़रूरी नहीं कि वही इंसान डिजर्विंग है जिनका हुआ है इस साल. सभी लोग डिजर्विंग है जिन्होंने मेहनत करी और फिर अपना 100% दिया है. मैंने अपना 100% नहीं दिया था. ओके. सो बट अब मेरे को उसका रेगरेट है, तो जब टाइम है तो करो चीज़ों को, वरना बाद में तुम लोगों को भी रेगरेट होगा कि पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि टाइम वापस कभी भी नहीं आता. फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज़, वर्क ऑन योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स में, और टाइम मैनेजमेंट भी, वो तो हर एग्जाम में करती है. बट 120 मिनट में 120 क्वेश्चन पैसेजेस पढ़कर करना है, सो दैट्स समथिंग पहले पहले सबको लगता है कि हाँ यार 120 मिनट में 120 क्वेश्चन ही तो करने हैं, पर जब तुम सिलेबस के अंदर जाते हो और देखते हो कि तुम्हारा इतना रह रहा है और इतना कम टाइम है तुम्हारे पास, तो फिर इफ़ मेरे को अगर हर सब्जेक्ट वाइज देनी होती एडवाइस, तो न्यूज़पेपर, डू रीड न्यूज़पेपर, ये सभी कहते हैं. मैं भी ये चीज़ कहूँगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ने का कह रहे हैं तो हाँ ठीक है, और क्या करना है, और मतलब और क्या करना है, सभी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कह रहे हैं. हम लोग चीज़ें ढूंढते हैं कि यार और करना क्या है, और क्या करना है, बस न्यूज़पेपर मतलब और क्या करना है, मतलब सब लोग ढूंढने में लगे रहते हैं और क्या करना है, और क्या करना है, ये सोच कर फिर कुछ भी नहीं होता. तो सब लोग एक ही चीज़ कह रहे हैं ना, तो चीज़ इंपॉर्टेंट है. देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने से इंग्लिश इंप्रूव होगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ेंगी, रीडिंग स्पीड इंक्रीज होगी, लीगल नॉलेज बढ़ेगी, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. न्यूज़पेपर को 40 मिनट्स रोज दो. इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए डू रीड न्यू वर्ड्स. ठीक है, न्यू वर्ड्स जानने की कोशिश करो, बेसिक्स क्लियर करो, ग्रामर क्लियर करो, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो रटवाने की कोशिश करता है बच्चों को. हर चीज़ रटो, क्वेश्चन रट लेना, ये कर लेना, फॉर्मूलाज कर लो, ये कर लो. तो इंग्लिश भी ना 12th तक भी लोग रट रहे होते हैं, लिटरेचर को कभी कुछ. ग्रामर पे इतना ध्यान ही नहीं जाता, नोटिस का फॉर्मेट करके चले गए, कभी कुछ करके चले गए. तो बेसिक ग्रामर पे काम करो, सभी को ज़रूरत होती है उस चीज़ की. बेसिक ग्रामर पे काम करो, और पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब कुछ करो, मतलब समझ लो बेसिक ग्रामर में जो सब कुछ आता है वो सब करो. फॉर लीगल, डू स्टैटिक लॉज लाइक कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बहुत सारी चीज़ें, टॉर्ट लॉ. ठीक है, ये सारी स्टैटिक लॉज हैं, डू देम. देन करंट लीगल भी करनी जरूरी है, डू रीड जजमेंट्स एंड न्यूज़पेपर एज आई सेड. लॉजिकल का तो पता ही चल गया होगा 2026 का पेपर देख के. क्रिटिकल भी करो और एनालिटिकल भी करो. एंड यू कांट एस्केप मैथ्स, बिकॉज मैथ्स व्हाट वी थिंक इज कि सिर्फ मतलब काफ़ी कम वेटेज है मैथ्स की इस एग्जाम में, तो मैथ्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की मैथ्स वीक होती है मेरी तरह. बल्कि मैथ्स सिर्फ 10th ग्रेड तक ही आती है, और मैंने 10th ग्रेड के बाद मैथ्स नहीं करी, बट फिर भी मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं कर सकते. और पहले से पढ़ना शुरू करो मैथ्स. जब मतलब कि अभी जैसे दिसंबर है, ठीक है, बोर्ड जा रहा है सबके ही नो, बट मैथ्स को साथ साथ लेकर चलो. अगर आप और सब्जेक्ट भी कर रहे हो उतने टाइम मैथ्स को भी दो, 40-50 मिनट तो दो ही, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे नहीं होगी मैथ्स. मैथ्स को भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और पैसेज बेस्ड मैथ्स आती है. ओके. देन करंट अफेयर्स दिसंबर टू दिसंबर आते हैं. कोई भी स्टिक टू अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक कंपेंडियम करना शुरू करो. ऐसे मत सोचो, मतलब पहले ना पता है मैंने 2 महीने अपने इसी चीज़ में वेस्ट करें कि क्या मैं ये कंपेंडियम जो कर रही हूँ यही सही है, या फिर मैं दूसरी भी करूँ. एक चीज़ से गाइस डू, सिर्फ एक ही टाइप की चीज़, ये कोचिंग का भी कर लूँ, इंस्टीट्यूट का भी कर लूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है. करंट अफेयर्स एक टाइप के ही चल रहे होते हैं देश में,
वो इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से लिख के डालते हैं चीज़ें, बट नहीं, स्टिक टू एक पर्टिकुलर चीज़ ओनली और रिवाइज़ करो। करंट अफेयर्स रिवाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। लोग एक दिन पहले रिवाइज़ करके जाएँगे, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है? मैं नहीं थी, मैं तो 2 हफ्ते पहले से रिवाइज़ करी थी, बट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन भी अच्छे से, ऐसे नहीं कि बस रीड कर रहे हैं, दिमाग सोच रहा है रीड हो रहा है, ठीक है? पर नहीं, बहुत अच्छे से रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत करंट अफेयर्स में। और यहाँ पे मैं फिर से 3 बजे तक पढ़ने बैठ गई थी, 12 से 3 बजे तक, क्योंकि मेरे को तैयारी करनी थी। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी मैं यहाँ पे, और शायद से मेरी इन टिप्स ने आपकी थोड़ी भी हेल्प करी हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड दीज वर सम ऑफ द इनसाइट्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। और ये सब मैं एक्सपीरियंस करने के बाद ही बोल रही हूँ, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग लाइक 2026 मैंने प्रिपेयर किया था कुछ महीनों के लिए। और अगर मैं सही बताऊँ ना यार, देर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी और सीक्रेट स्ट्रैटेजीज एज सच। सब सीक्रेट स्ट्रैटेजीज पूछने भी लग रहे हैं, पर यार पहले बेसिक ही क्लियर करो ना। मतलब लोग सोचते हैं कि यार बेसिक्स तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते, लोग और चीज़ें ढूंढने में लगे होते हैं। तो यही एक पॉइंट है जो लेके डूबता है सबको। सो वी लाइक, सच में यार, वी ऑफ्टन लाइक कीप सर्चिंग और समथिंग एक्सेप्शनल वाइल, सारी चीज़ें पीछे छोड़ के, बेसिक्स पीछे छोड़ के हमेशा कुछ एक्सेप्शनली सर्च करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, सीक्रेट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, उसी से सब कुछ बनेगा। एंड जब हम ये सब कुछ छोड़ देते हैं ना, अपने बेसिक्स वगैरह, और कुछ अलग ही ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ अलग ही करना होता होगा, कुछ अलग नहीं करना होता, सबसे पहले बेसिक्स ही क्लियर करने होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, as a result we end up doing nothing at all, yaar. So this was all about CLAT that I wanted to tell you guys, these strategies and tips you were asking for. And फॉर 12th, अगर 12th का बताऊँ, मेरा सिलेबस इज़ नॉट कम्प्लीटेड टिल नाउ, अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे मेरे को पढ़ते पढ़ते 3 बज गए थे, बता दूँ अगर। तो अगर हर सब्जेक्ट में 2-3 किताबें हैं तो मेरी एक एक ही हुई है। मैं अभी उस लेवल पे हूँ क्लास 12th के सिलेबस में, और मेरे क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। देन आई टोक अ मेडिसिन वगैरह मैंने ली कॉफ़ी वगैरह से, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल एट ऑल। देन मैंने बैग वगैरह लगाया एंड आई स्लेप्ट। आफ्टर लाइक वेकिंग अप, मेरे को एक प्रेजेंटेशन वगैरह देनी थी। आई रीचेक दैट, क्योंकि मेरे को वो सबमिट करनी थी, और मैं नहीं चाहती थी स्कूल में जब वो प्रेजेंटेशन खुले मेरी, तो वो गलत खुले या फिर कुछ अनाब शनाब लिखा खुल जाए उसमें। सो आई लाइक रीचेक दैट एंड आई वेंट टू स्कूल. So guys, this was a study vlog. For more such videos, you can subscribe to my channel. Till then, bye you guys, take care, and yeah, subscribe.